Hi Om, hi Ananya, hi Shamit, hi Tanush, hi Tripti. Please turn on your cameras. ठीक है, जनवरी के अंदर there is an exam. What are your reactions? ट्रिप्ति कैसा लग रहा है आपको? ठीक है. Fine, got it. So everybody is joining. So can I have your number? Last time I was not able to write down. So can I have your number? I was not able to write down your number last time. नहीं रुक जाओ, गलत लिख दिया, सॉरी. Good evening, sir. Good evening. Hi Raghav. Hi Nachiket. Hi Rishi. Hi Tanush. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Others also please turn on. Good evening, sir. Good evening. Hi Pradeep. Good evening, sir. Good evening. ठीक है. चलो, so I have 2-3 questions. So just to say. So I have first question that we had already conducted 7 tests. One was today. 7th test we have conducted. Based on 7 tests, what is your level of preparation in those 7 areas? I am sharing my screen. It is a very simple question that I am asking. You can turn on your cameras and just speak. Don't take your turn and speak. एक खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा बोल सकते. ठीक है, so these were the tests that we had earlier conducted. ठीक है, and we have reached till test 7. 7 has been completed. Today 7 was assigned. Till 7th we have done. Okay. So what is your level of preparation till this 7 blocks? That is my fundamental question. Nachiket. Yes, sir. So I'm not extremely confident in maths, but other than that, I'm pretty confident in the other things. Okay. ठीक है. Archit. So same with me. I'm not that confident in maths, but I think I can manage physics and chemistry. Tanmay. I'm confident in maths and chemistry, but not so much in physics. Okay. Okay. Got it. ठीक है. Now see, and one thing you all need to understand here. This exam is shock for everybody, not just for you. So when you're trying to process this, you need to divide the whole process into 3 parts. And one is what should be my response at this point of time? That is my first question that I should answer. Second is basically what is the plan ahead? Chicken, and what kind of action should I take in order to reach there? These are very simple, 3 simple directions in which you should think. One is response. Now, there might be few students among you who think that probably my board preparation is not very good, my pre-board scores are not coming, etc. A lot of you might be thinking that. ऐसा है कोई? हाथ खड़ा कर दो, मैं देख लूँगा. Yes, sir. ठीक है? You are there. You are there. Yes, sir. See, for boards, what you will require to do is basically write few test papers before going into the board exam, and that will be sufficient. You do not require new knowledge, according to me. Sir, I got disconnected. What were you saying? I have just started. I have not said anything. I was just talking to everybody. Okay. So for that, what you do not require is new knowledge. What you require is reorientation of knowledge. So all for that, even if you write few papers before the exam, that would be fine. But now the problem is that at this point of time, now if you focus on your pre-boards, definitely your first attempt of JEE is not going to go. Okay. So now this is a tough choice for you guys to make, whether to focus on pre-board or whether to focus on JEE. But my suggestion is basically you focus on your JEE part. And there is a reason behind that, because in first attempt, it is easier to get better percentile in less amount of knowledge. And the reason is that there are a lot of unprepared students who are writing the exam. So it is not a test between people who have prepared really well and people who have not prepared that well. This is an exam between students who have all not prepared really well. So there are droppers as well.
So even toppers are not well prepared. There is a reason behind that. And then the 2-year students are those students who are well prepared compared to droppers. The reason is that droppers are starting late in their cycle. Most of the scenarios, there's 60 to 70% syllabus is finished anywhere across India. And if by any chance, if you finish whole of the syllabus, then it is even bad position. Because now you have not done even a single topic diligently. So it is not that droppers' life is very comfortable, and they have their own set of problems. So the most comfortable people in this situation are those who have done a 2-year program. Because at least they have finished their syllabus. And it might be scenario that they are well prepared with it, they are unprepared with it. That is a different question to answer altogether. But at least they have done their syllabus. Got it? So it is not an exam between students who are really well prepared and the students who are not that prepared. This is an exam between students. All of the students have some kind of a problem of their own. Something that मेरा organic अच्छा नहीं है, किसी को लगता है मेरा indefinite अच्छा नहीं है, किसी की math अच्छी नहीं, किसी की chemistry अच्छी नहीं. That is the reason I asked you basically out of those 7 blocks that we have prepared, how many of you feel confident? And the nutshell of all of that is nobody is confident. And if you take a sample size of how people are feeling here in this group in Prague B, that is exactly what is going to happen at a national level. The situation is not much different there also. Apart from not even 0.5% of people across this country, that is 5,000 or 2,000 or 3,000 students, nobody is confident. Even believe me, I was among those 2,000 students, even I was not confident. Nobody is in a good shape. And that is the first thing to understand. For everybody, it is a shock. So from that point of view, we are all equal. Now, how do you process that response? That is going to determine how well you are going to do in the next 37 days. Now see, this 37 days can go in 2 ways. You can sulk about whatever preparation you have done. Or you can put in extra hour, extra effort to prepare well whatever you can in 37 days. It is not about what you can do absolute best. Absolute best is not possible. I am saying it is out of the window. Whatever best preparation we can do in 37 days is going to make a lot of difference. Okay, so what will that mean? What will that mean is basically 7 topics we have done. Now, how many more can we touch? That is one thing. Another idea would be how many of them can we prepare really well. And we will have to make a balance between both of those. For example, if I just say that I'm going to prepare 60% syllabus and go and write the exam, then in that scenario, in the best case scenario, I am not going to get more than 50%. So it might also happen that on a bad day, I might get 40% marks and get 90% times. So it is not also a very good suggestion. You prepare everything and you do nothing good at all. Even in that scenario, probably you won't even get 90% also. So my idea is basically one, syllabus balance you will have to understand somewhere between it should be there. Secondly, a very good idea at this point of time that I definitely know none of you have done is basically go to the NTA website and see what the actual JEE syllabus is. Take a printout of that. It is very I have a important. printout. Yes, yes. I guess I have a printout. Yes, very good. Okay, I keep it in folder. That 2023 wala or 2022 wala? 2023 wala. Okay. So now they have given it on the website today. Yes. Now, what is the doubt? पहली चीज तो मार्क्स नहीं आ रहे, लाइक पर मुझे लग रहा है थ्योरी आती है, क्वेश्चंस अकेले में बनाता हूँ बिना प्रेशर के बन जाते हैं, टेस्ट में बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे। हाँ, ठीक बात है। कौन से टेस्ट में मार्क्स नहीं आते? सर मैथ्स में मेरे सेट है, मैथ्स में तो सही चल रहा है। फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते। फिजिक्स में मुझे हमेशा लगता है कि मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, बट मार्क्स दबा देता हूँ। केमिस्ट्री में तो कुछ मार्क्स आते हैं आपके फिजिक्स में? सर इस बार 40% आए थे, which is like I should be getting more because normally you should get at least 50% marks in your physics paper. Yes sir, exactly क्योंकि बट मैंने सारे मेंस के PYQs निपटा दिए, एडवांस के PYQs निपटाए, एक बुक सॉल्व की है। Like I'm not getting where exactly I'm going wrong. देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आपके साथ प्रॉब्लम क्या मेरे साथ भी थी। मेरे बहुत कम खराब नंबर थे मेंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, और जो एडवांस के अंदर 75 मार्क्स थे फिजिक्स के अंदर, 75% in JEE Advanced. Now, what was the difference between first and the second exam? The difference was that
मैं क्या उसको मैथमेटिक्स की तरह कर रहा हूँ। मैंने पीवाई को भी निपटा दिया और मैंने ये एग्जाम भी कर दी, मैंने बुक भी कर दी। फिजिक्स में वो गेम नहीं है। फिजिक्स के अंदर द आइडिया इज दैट व्हाटएवर यू आर राइटिंग, द रीजन बिहाइंड दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू. If you are doing it in that manner, your physics will build up. That much practice is also not required. You know, मतलब सब लोग कहते हैं कि एससी वर्मा करनी चाहिए. I did it just before the exam. I finished HC Verma. एससी वर्मा आपने कर ली. तो अगर लॉजिक क्लियर तो फिर गलती कहाँ हो रही है? मतलब basically why are you not getting marks? तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा. कई बार जो एग्जाम में मैं डायरेक्शंस मिस कर देता हूँ. लाइक मतलब गलती कहाँ होती है? फॉर्मूला गलत होता है, एप्लीकेशन समझ नहीं आती किस तरह से करनी है, या क्वेश्चन ही समझ यूजुअली फॉर्मूला गलत होता है. और फिजिक्स में यूजुअली वो वाला पार्ट हो जाता है. जैसे मैग्नेटिज्म का भी टेस्ट दिया था, तो फिर मेरा वो वाला पार्ट हो गया EMI और वो सब जो थियोरेटिकल पार्ट होता है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और जो थियोरेटिकल पार्ट होता है, जैसे इलास्टिसिटी मेरा समझ गया. मैं आपका पॉइंट समझ गया. बेसिकली आप बोल रहे हो थ्योरेटिकल वाला हो जाता है और जो एप्लीकेशन वाला होता है फंस जाता है, उसमें फॉर्मूला गलत हो जाता है. फॉर्मूले याद नहीं है. नहीं, एप्लीकेशन वाला हो जाता है, वो थियोरेटिकल वाला नहीं होता है. तो फिर आपको याद नहीं ना कंटेंट. अगर थ्योरी का क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कंटेंट नहीं याद. maybe what I'm trying to do is basically यही करने की जरूरत है ना. मैंने उसका स्पेसिफिक केस लिया, बट all of you need to think in this manner. ठीक है ना. Instead of worrying about मेरे 30% या 40% या 10% मार्क्स आ रहे हैं, you figure out the exact reason why I'm getting those marks. And if you are able to remove those problems, then you are going to get marks. Because I did it, and I was able to get, so even you can get. And everybody is able to do it in that manner. Flawless किसी का नहीं होता है. ठीक है ना. जो बेस्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, वो भी उसके तो पसीने छोटे हुए सकते हैं, वो बहुत बुरी हालत के अंदर. ठीक है. मैं दिन भर के अंदर 2-4 से मिल चुका हूँ, इनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. Everybody is in that manner, and everybody is committing this small thing. ना, everybody is getting stuck. Idea should be to go into the details. What exactly is not happening, and ask at least 5 why questions to yourself. है ना. Why कि नंबर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे. ठीक है ना. If you are able to answer that, again ask अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है. Ask at least 5 why questions, will get the answer. No need of any teacher, any mentor, किसी की भी जरूरत नहीं है. If you ask 5 why questions to yourself, you will understand it. ठीक है. So that is the first thing. Basically, this response needs to be in the constructive direction, and then not in the destructive direction where you are sulking about कि मेरा कुछ नहीं है. Second thing is basically now you need to understand is basically now whatever effort you are going to put has a great value when we are towards the end of preparation. क्यों देखा? जब मैं IIT-JEE का सिलेबस ओपन करूंगा, तो there is something I am going to observe. Let me open and show you something, and then you will have a depth of whatever I am trying to speak here. See, for example, in this syllabus, math wala part I am going to open, because see, in this part, once I will open it up, and I will have a lot of insights into the syllabus. Like in for example, statistics. Only that much is there. That is there in your NCERT. And if you do not have the insights, I have 1 hour lecture recorded for that. ले लो मुझसे. If you look into vector algebra, देखो syllabus बस इतना सा है. ठीक है ना. There is a 5-line syllabus. There is nothing more than that. That except scalar and vector triple product, most of the things are covered in your NCERT. इसी के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इसको तो एक्सीड नहीं करेंगे ना. They are not going to ask you tetrahedron, volume of tetrahedron. ठीक है ना. All those things they are not going to ask you. That is what I am trying to tell you. इसका एप्लीकेशन कुछ भी पूछ सकते हैं. That is correct. Now if you look into I'm going to show you straight lines, like, you know, so there is nothing like in this straight line, they're not going to ask you pair of straight lines. So if you do not know pair of straight lines, there is no worry regarding that. अब आप देखो ना सिलेबस में तो बिल्कुल जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंगल बाइसेक्टर, ये बेसिक चीजें पूछ रहे हैं. ये था है ना. लाइक दिस है ना, बेसिक थिंग्स. डिस्टेंस फार्मूला, एंगल बाइसेक्टर, सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है. Equation of family of lines. That's all. They are not asking you pair of straight lines. So there are small parts of syllabus that everybody is worried about. ठीक है ना. Most of those things are not in the JEE syllabus. ठीक है. So this is the most important thing, that whenever you are preparing a chapter, just go through the syllabus. And you will see that you are doing a lot of, like for example, if you go into integration, they have even given what kind of integrals they are going to use.
ठीक है, तो इतना सारा पढ़ाया है, लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए, आप देखो इसके अंदर है ना, यू नीड टू नो व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू नो इज बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक integrals that we did and these basic ones, nothing else. ठीक है, got it, understood what I'm trying to tell you here. And you will see that when you're solving P by Q, this is the syllabus, that is the core syllabus, and till what extent are they going. Okay, so this is a very important input that I wanted to give you. Now the second is plan. What should be your personal plan and what is the practice plan. Now your personal plan should be, ठीक है तनुष, अगर मैं तुमसे पूछूं what is your strongest topic in mathematics? Sir, differential calculus. Differential calculus is strong. What else is strong? So vectors and 3D. Vectors and 3D strong. ठीक है, what is the weakest one? Conic sections. Conic section, ठीक है. और बताओ, और तुम ऐसा कौन सकते हो जो moderate type है? Trigonometry. Trigonometry, ठीक है. So see, what I'm trying to tell you is now you need to do two different analysis. ठीक है ना, what is two different analysis? मेरा जो syllabus है, what are those parts which I'm confident about? ठीक है ना, what is the part of the syllabus that is I'm moderately confident about, and what is the part of syllabus I'm not confident? ठीक है, तो तृप्ति सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेंगे? Language I am not confident. नहीं, उल्टा करेंगे. We are going to prepare those areas first which I am confident about, because in this I am going to score marks. नॉन कॉन्फिडेंट वाला किया भी तो चांसेस पता नहीं ना कितने हैं. ठीक है ना, टेक दैट पार्ट ऑफ द सिलेबस वेयर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट एंड ट्राई एंड prepare that syllabus. It is also going to give you confidence. See, अगर 40% भी ऐसा है that you are confident about what you have prepared, you are going to gain confidence out of it. You are able to do JEE problems. You are able to do a lot of difficult problems also. You are able to get decent marks in test also. Now, from that confidence, do you move your preparation towards moderate topics? ठीक है ना, and then towards that probably you can take up those topics which are really difficult. Paper भी ऐसे लिखना, ठीक है ना, उल्टा नहीं करना है पेपर के अंदर, है ना. Same manner you write a paper also. है ना, so that means, for example, if 30% is really confident, using that 30% confidence, I can achieve confidence for 60% क्योंकि moderate को वहीं convert कर लूँगा. Now 60 to 70% is that I am very confident about. 20 to 30% is that not I am not very confident. When I wrote my JEE paper in mathematics, there was only 60% papers in which I was confident. And using that 60%, I was able to get top 100 rank in ITG Advanced in mathematics. और मुझे जितनी मैथमेटिक्स आ जाती है ना, उसकी 10% भी नहीं आती. Got it? So what I'm trying to tell you is basically it is about your own confidence, your own comfort zone. What is your perception about your own syllabus? And that needs to grow with time. So this is what you need to do at a personal level. And for doing that, you will have to write a lot of mock test papers. And I am talking about full syllabus notes. So this is one part. And now there are areas that are generally important for the syllabus. And for that, we have done a plan. Okay. So now if I go towards my plan and that I have made for you, and again, I want inputs from your side, will it be feasible for you, etc., and that we can discuss. So my idea is basically now, instead of you doing preparation, we are going to help you do the preparation because there is less amount of time. So what we have done is basically out of the syllabus, we have figured out what is most important that you must do. And for that, we have made a daily planner for you. हमने क्या किया है? What we are going to do is, a faculty is going to come. He is going to sit with 2 hours every day. है ना? 1 physics, 1 chemistry, 1. So 6 hours classes we have planned. In those classes, what we are doing is quickly the revision of the topic and important problems from JEE point of view that are asked from the topic. ठीक है? तो जो तुम बैठते हो एक दिन के अंदर करते हो वो तुम्हारी 2 घंटे में करते हो. है ना? So what I am trying to do is I am going to triple your output on a daily basis. What is your job after this? So probably whatever you forgot in let us say matters and determinants, I am going to revise you that very first. And after that, I am going to give you all the important questions that are asked from that topic. So that without even solving, you get an exposure कि अच्छा क्वेश्चन आएगा तो मेरी ये अप्रोच होनी चाहिए पेपर के अंदर. Then I am going to give 30-40 more questions on the same topic. You solve that. You develop confidence. And for doing that, for every topic in mathematics, I am giving you 2 days. Minimum. So in 2 days, and let us say like in the first 2 days, 17, 18, now what we are doing is basically just 1 here, practice determinants is the same topic. I do not consider them different. 1, 2, 3, 4.
And even fourth is not done. Electrostats is going for 3 days. Coordination compound, big topics will go for 3 days. Okay? And we are not going to do useless things which will not be asked in the exam. Only important to the point things. So that is what how we are going to do it, right? So it should be both ways street. So now, for example, like doing these 4 topics, you are going to get at least 6 questions out of it. 5 to 6 questions. So by investing this, क्लास के पहले रिवाइज करके आना है क्या? क्लास आ के जाएगी, पहले अच्छी बात है, आपको फायदा होगा. ठीक है ना? Your ability to solve problems in the class will help you. आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा. सर एक डाउट है. हाँ, 1 मिनट पहले मैं खत्म कर लूँ, फिर आपको डाउट पूछ लीजिए. तो ये देखो, हमने ऐसा करिकुलम प्लान किया. मैं इसका लिंक भी चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ. ठीक है ना? एंड दिस इज नॉट सेट इन स्टोन. ठीक है ना? व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस, वी आर गोइंग टू मीट एवरी सेकंड डे and have a discussion over it. If you want to modify it, and if you are finding it very difficult to follow, we will reduce the quantity. And if you are finding it very easy, we can increase the quantity. Okay? So it is a matter of ratio and proportion. After every 2 days, I am going to meet you. Okay, at 9:30, and whatever your inputs are there, whatever problems you are facing, we can discuss for 10-15 minutes. If you do not have a problem, don't come. Don't waste time. Okay? Invest in your studies. That will be more beneficial. Okay, so now what I am planning is basically most of the classes that we are doing in alag manner, we are going to stop that. There is no point doing 1 or 2 topics other than focus on what is important for JEE. Okay, for that there is 6 hours of class schedule if you want to follow. Okay, I am using want to follow because you can have your own plan as well. And that will require 7 hours to do because half hours of breaks are there in between. So 2 hour plus 1.5 hour break, so 7 hours will be able to finish it. Before 10 you have time, after 5 you have time. So for example, there are early risers, they can study in the morning. They are late, people who sleep late can study after that. So they have almost most of their time available with them still. You can supplement these topics with PYQs. That's it. So that you understand what is the limits of JEE Mains. And after that, after 8, we are going to have 16 days for solving mock test papers only. The people who are very enthusiastic, we will encourage them to solve 2 papers in a day. There might be students who think, "Nahi sir, ek bahut hota hai mere liye," can solve 1 paper in a day. And then 3 hours of discussion on those tests that we are doing will be planned on a daily basis. Again, if you think that I have a lot of doubts, come. If you think that I do not have any doubts, just write the papers. Do self-analysis. Yes, now question. Excuse me, sir. Ji, puchiye. Sir, you said like 6 hours of classes every day to revise these, sir. However, I have my exams until next Friday, sir. So See, so that is what I'm trying to tell you. This pre-board, etc. This is the final exam, pre-board exam. pre-board hai, sir. तो भाई ये तुमको बैलेंस आउट करना पड़ेगा. You will have to make a choice. If you are going for pre-boards, then do not take this attempt very seriously. Prepare for approach attempt. ठीक है ना? दोनों नावों के अंदर सवाल होने का कोई सेंस नहीं है. आप तो प्री-बोर्ड की प्रिपरेशन ढंग से कर लो या JEE मेंस की कर लो. ठीक है ना? आप एक करने जाएंगे, दोनों ढंग से प्रिपेयर नहीं होगा, दोनों जगह डिसअपॉइंट होके जाओगे, कोई सेंस नहीं है. Make your choice. Be very clear about your choice. I am going to prepare for JEE means first attempt. Do it sincerely. If you think that कि नहीं उतना important नहीं है, बोर्ड में नंबर लानी है मुझको, है ना? Prepare for your approach attempt. है ना? JEE ने खेल लिया तुम्हारे साथ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे. Okay. सर फर्स्ट Yes. तो फर्स्ट जैन से प्रैक्टिकल भी शुरू है बोर्ड्स के तो. हाँ, तो वो आपको वही मैं बोल रहा हूँ बेसिकली कि फर्स्ट जैन से प्रैक्टिकल भी हैं, इसके बीच के अंदर प्री बोर्ड्स भी हैं. ठीक है ना? आई वांट यू टू मेक अ क्लियर चॉइस. ठीक है ना? इसके अंदर आप हैप्पैज़र्ड चॉइस मत करना बेसिकली कि थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं. ठीक है ना? मेक अ क्लियर चॉइस एंड ट्राई एंड एक्सेल इन वन ऑफ द एग्जाम दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. देखो तुमने JEE मेंस अटेम्प्ट फर्स्ट में अच्छा किया, दैट इज आल्सो गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस इन लाइफ फॉर राइटिंग सेकंड अटेम्प्ट. ठीक है ना? एंड if you have done very good at the level of boards, that will give you some level of confidence. ठीक है? Got it? What I'm trying to tell you. ठीक है ना? Do not do half-hearted measures where you are not doing either good here or there. That is going to sap your confidence like anything. करो तो ढंग से करो, और नहीं कर रहे हो बेसिकली तो whatever preparation you have उसके अंदर जाके लिख देना. परेशान मत होना कि अगली बार देखेंगे. Sir, it's sort of a weird question, but what would you recommend we do, sir? I mean, I know it's up to us, but what would you recommend we do? My recommendation is you prepare for JEE means. There is a reason behind that, and the reason is basically, see, if you for example, if you're thinking for
doing JEE means, and for example, I have put my best and still I was able to get the worst marks. Let us take that scenario. Okay, what good is coming out of that? The good that is coming out of that is basically by putting these 37 days, you have understood that what else can be done in the next 60 days that you will have for the next part of the exam. And those 60 days becomes more efficient just by putting your best effort in this 37 days. Now, do only this if you are able to score 75% marks in the boards. नहीं तो otherwise तुम आगे के एग्जाम शायद लिख ही ना पाओ, तुम्हें कई जगह दिक्कत आ जाए. Please don't do that. If you think that I will be able to score 75% marks, then you can do this. Sir, Yes. so the ongoing test series, will it continue with this pattern that you have just showed us? No, we are going to change. If you look into this, if you have already opened the sheet that is already shared with you earlier also, we have changed the pattern of the test as well. Right? Here you can see test. Both the things will not go hand in hand. We have changed the pattern of the test as well. And see, what I'm saying is basically based on in-class experience that we will be having, we are still going to keep modifying this planning little bit here and there to make you comfortable. Every 2 days, I'm going to meet you at 9:30 to take your inputs, whatever problems you're facing, so that we have a contact as well. And if you have my number, right? You can drop me a message. We can meet individually also if there is something very specific. Talk over a call as well. The idea is that basically I want to be in very close touch. Whatever you are doing, you're preparing for boards, that is also fine. And I have no problem in any of the decisions you are taking. I am here to guide you towards best decision. And Nachiket, I cannot take decision for you. You will have to take it for you. I can only give you the information. Yes. Yes. Sir. Yes. Sir, can the timings be a bit changed because school में pre-boards है, preparation का problem नहीं है, but school में attendance भी अच्छा नहीं है. So, pre-boards? Sir, इस week है, like next week होंगे 23rd तक. तो आप कुछ मत करो ना बेसिकली, वो जब आपकी प्री-बोर्ड्स हो रहे हैं आप रिकॉर्डिंग देख लो, सेशंस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है बाद में आके. Sure. ठीक है ना, आई हैव केप्ट इन सच अ मैनर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम विद यू. अदरवाइज आई कैन, है ना, अब इसको मैं और ऊपर मॉर्निंग में नहीं पुश कर सकता, लाइक 9 o'clock, पता नहीं मुझे कितने लोग आएंगे. नहीं, ठीक है, 9 इज फाइन, है ना, बट देयर आर अनदर कंस्ट्रेंट्स विद द फैकल्टीज टाइमिंग एटसेट्रा. ठीक है, इवनिंग आई डू नॉट वांट टू पुश इट. इवनिंग आई वांट फॉर यू गाइस टू हैव कि आधा दिन तो पूरा तुमको फ्री मिलेगा अच्छे से. ठीक है ना, अगर मैं थोड़ा और इधर उधर खिसकाऊं तो थोड़ा गड़बड़ होगा. यस, तो थोड़े से टॉपिक्स मिसिंग है ना, लाइक डॉक्स में, लाइक. हाँ बताओ ना क्या मिसिंग है, मुझे पता है. जैसे फिजिक्स में कैपेसिटर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है. वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक है. और बताओ. और कैलकुलस ऑलरेडी कवर कर लिया ओल्ड प्लान के अंदर. ओके, तो फिर जो टॉपिक्स उस टाइम पे कवर हो गए थे अब वो नहीं कवर नहीं होगा. मैं अभी नहीं कर रहा हूँ. मैं क्या कर लूंगा बेसिकली उन टॉपिक्स को बेस्ड ऑन योर डिमांड आई विल कवर देयर बिटवीन 8th of Jan to 23rd of Jan, जब मॉक टेस्ट चलेंगे पैरेलल कवर करेंगे. ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स की तुमको रिकॉर्डिंग दे दूंगा जो कवर करने की जरूरत नहीं, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, देख लेना, हो जाएगा. स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल. यस सर. सर, क्योंकि ऑर्गेनिक का टेस्ट हो गया है तो इसमें ऑर्गेनिक का पोर्शन कवर नहीं हो रहा ना. ये हो रहा है ना रिएक्शन मैकेनिज्म. तो अच्छा, जो प्रॉब्लम्स आते हैं पेपर के अंदर उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे ना. यस सर. ठीक है ना, सब कुछ पढ़ाने का तो कोई सेंस ही नहीं है. सर, यस, so based on the statistics, ये जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले जो चैप्टर्स हैं ये वो पिक्ड अप करें. यस, ओके. ठीक है ना. सी, मैं आपको बता देता हूँ. आई हैव कंसीडर्ड 2 क्राइटेरियाज. वन इज बेसिकली वेटेज. तो सी फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स डिटरमिनेट्स वेक्टर्स 3D, and if you look into their weightage there are going to be 3 to 5 questions, 5 to 6 questions basically. ठीक है ना. Now I have chosen after that coordinate geometry. There's a reason behind that, because coordinate geometry only had 4 to 5 questions from these topics, but those questions were very simple. Even if you know just equation of tangent, you can do the question, and even if you know the equation formula, basic formula, you can do the question. तो इसमें से आसान क्वेश्चन है. That is the reason I have chosen these topics. ठीक है ना. And now if you see here, this equation series same logic is being followed till quadratic. ठीक है ना. Quadratic only on 2 concepts there are most of the questions that they are asking in JEE. Then after that topics which are difficult to do, but PNC I am independently covering in the classes. है ना, वो मेरी क्लास चलती रहेगी. I am not going to stop those classes in the evening. है ना, so that PNC and probability में डिटेल में जो मुझसे पढ़ना चाहता है वहां के पढ़ लो. जिसने पढ़ रखा है फिर those can skip those classes. You can come for this revision class.
Here I'm just So going to do math, revision. I'm not going to teach it systematically. Yes. Mr. Mathematical reasoning कवर ये करा देखो, दोगे? मैं रिकॉर्डिंग 1 घंटे की मैं दे दूंगा आपको, देख लेना। ठीक है, Statistics भी भेज दोगे? स्टैटिस्टिक्स की भी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है ना, अगर इसको चाहिए रिकॉर्डिंग पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर तो मैं भेज दूंगा। 1 घंटे का है बेसिकली, इफ यू जस्ट वॉच दैट 1 hour द होल टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग का आपका वैसे ही हो जाएगा। सॉल्व अराउंड कर लेना उसी के अंदर, 1 घंटे में फिक्स है पूरा। So, यस, So So I have just- one doubt. प्लीज। So actually boards में भी 75% ही होते हैं IIT में एडमिशन लेने के लिए. So boards are also important, or practical exams. That's why it's very important. Yes, that is important. I have Yes, already sir. said that in the starting it is important. Yes. Yes, sir. And so after 10 o'clock or before 5, I don't have my school, ठीक है, and I want to attend the live session. So what should I do? कितना स्कूल है आपका? So actually 8:30 से चालू होता है and 5 तक खत्म होता है. Tomorrow also I have my exam. Exams are having, or you are having classes there? Tomorrow is my exam. Regularly there are classes from 8:30 to 5 o'clock, and they take practicals on the daily basis for the practice of the board. बेटा ये तो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं बताओ। ठीक है ना, सी इवन इफ यू वी स्टार्ट आफ्टर 5 है ना, लेटर से है ना, तो 11 बजे तक करेंगे क्लासेस रात के। कैसे होगा वो, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा ना आप जो कह रहे हो उस टाइमिंग्स के अंदर। तो व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स देन, because that will be more feasible for you. For the students who are from Abhinav batch, ठीक है ना, this plan is optional, their classes are going to work as normal. ठीक है ना, other batch onwards है ना, we want you to attend here, क्योंकि अभिनव का syllabus is going in उल्टा direction. We started with 11th, we are moving towards 12th. So we are going to work in a systematic manner in Abhinav batch. For all the other students, this plan is fine. Mishita, I don't know what is the solution to your problem. ठीक है ना? Okay, sir. So but yes. अभ्यास बैच में भी 12th का पोर्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है. सो कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना बेसिकली कौन कौन से टॉपिक से, जस्ट पुट मी अ प्राइवेट मैसेज, आई विल अटैच टू वन ऑफ द बैचेस दैट विल अटेंड आफ्टर 5. ओके सर. ओके सर. यस. आपने बोला हमें जो टॉपिक्स में जो हम कॉन्फिडेंट है उससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर अपने जो मॉडरेट टॉपिक्स हैं इनके ऊपर इम्प्रूवमेंट. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट. ठीक है ना, अब अगर तुम्हारे टॉपिक्स और मेरे टॉपिक्स एकदम अलग है, बिकॉज़ आई गेस यू आर कमिंग आउट विद दैट क्वेश्चन, राइट? No, sir. मैं I was gonna ask like हम कैसे decide कैसे बोल सकते हैं कि हम confident हैं उन topics में. If you are able to solve previous year question of that topic, that is well prepared. Okay, fine. ठीक है, there is a one line litmus test of whatever you are trying to do. If you are able to do previous year questions from that topic, that is prepared. Don't worry. If you are not able to do previous year questions, नहीं prepared. और तो previous year questions अभी कर ले तो enough होगा, like सिर्फ previous years करें. इनफ तो देखिए, इनफ क्या होता है, मैथमेटिक्स में इनफ नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनफ। तो मैथ्स में और क्या करने की जरूरत है, मॉड्यूल? देखिए मैं बता देता हूँ, मैथ्स के अंदर आपको क्या चाहिए, मैथ्स के अंदर मॉड्यूल भी अगर आप कर ले तो अच्छा है, लिमिटेड टॉपिक्स को टारगेट करें, बहुत ज्यादा टॉपिक्स ना करें, ठीक है ना, एंड उसमें से जो इजी वाले वो हम करा ही रहे अलग से बैठा के, ठीक है। दिस इंटेंसिव 6 hour सेशंस एवरी डे दैट यू आर टेकिंग इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली, ठीक है। एनीथिंग एल्स? हाँ प्लीज। तो जैसे कल आप क्लास लोगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की, तो सर हमारे बैच में कवर नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग दिक्कत आएगी क्या समझने में? नहीं आएगी आपको समझने में दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर बहुत आसान है, 4-5 ही चीजें हैं उसके अंदर जो पता होनी चाहिए, इनफैक्ट ये बेटर है पूरी क्लास करने से। ओके सर, ठीक है। Because the topic is very easy, it is a theoretical topic, there are lots and lots of details, irrelevant details also that we teach in the class, but when you go at the level of questions they are asked completely different. ओके सर, It is better you come and directly attend, मेरे ख्याल से 2 घंटे के अंदर ये खत्म हो जाएगा, ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं। ओके सर। Because in total if I can see matrix determinant 10 questions can be found, ठीक है ना, वो 10-15 अगर आपको पता है तो most of the times you will get the right answer, वो 10-15 नहीं पता तो फिर ठीक है, गोल ओके सर यस। सर ऐसा होता है कि चैप्टर का कुछ हिस्सा हमें पता होता है, कुछ हिस्सा नहीं ना, तो
क्या आप बता सकते हैं कि हर डेट पे जब आप कुछ पोर्शन कवर कर रहे हैं तो वो कहाँ तक कवर होगा, ताकि हम तो डिसाइड कर सकते हैं आपको जो कि मैं नोट्स हम लोग यूज कर रहे होंगे इसको टीच करने के लिए, ठीक है ना, स्पेशली इन मैथमेटिक्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट विल हैव स्लाइटली डिफरेंट पैटर्न एंड एवरी टीचर विल टेक इट अ लिटिल बिट डिफरेंटली. So what we have done is basically we have made very specific teaching notes for that. अब देखोगे तो इसके अंदर क्या है, in this notes there is a mind map that is given. So there is a detailed idea of what exactly is there at है ना till advanced point of view. टीचर जब पढ़ाएगा बोलेगा ये आता है ये नहीं आता, वो कट करता जाएगा इसमें से, ठीक है. And then short notes of the whole chapter is attached here only for your reference. ठीक है. तो two types of discussions we can do. Like once we have shown you the mind map, पहले हम आपसे पूछ लेंगे इसमें से तो कुछ है जो आप चाहते हो पढ़ा दें. जैसे तुम बोलोगे सर ये मेरे को कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता ही नहीं. We can take those specific areas first. That is one thing, or in detail. And rest of the things, if everybody knows, probably that can be skipped and we can directly jump onto problems. The results are there with you, and handy results are given to you. And now you directly jump onto JEE problems and methods how to tackle JEE questions. लेकिन JEE में क्या पूछा? Topic तो बहुत बड़ा था. ठीक है, तो JEE ने देखो ये क्वेश्चन पूछा. Area of the equilateral triangle inscribed in this circle is 27√3. Find the value of C. अब ये थोड़ा ना पढ़ाते तुमको. पूछ तो कुछ और ही रहा है. ठीक है, तो how to tackle questions that you need to understand that all the questions in circle will be solved using geometry. बस now if you know this है ना, तो सीधे ट्रायंगल बना देते हैं अंदर और हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है. ओके फाइन, अंडरस्टूड. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होगी. अच्छा एक मिनट रुक जाओ, है ना. पहले इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, पहले चलते जा रहे हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे वो सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं अगर आप देखोगे. एंड वंस यू लुक इनटू दिस एंड यू विल सी दैट है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे उन्होंने, है ना, बहुत उल्टे सीधे टॉपिक्स पे नहीं पूछे. लाइक रेडिकल एक्सिस पे एक्सिस किसी ने नहीं पूछे, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे, बहुत बेसिक चीजें ही पूछ रहे हो ना. 2 सर्कल से आगे वो पहुंचे ही नहीं कभी, यहीं तक वो पहुंचे हैं बेसिकली, है ना. तो नाउ दिस थिंग्स इफ यू नो फैमिली ऑफ सर्कल तक तो हो जाना चाहिए इसके अंदर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बेसिकली इफ आई लुक इनटू दिस टोटल प्रॉब्लम्स दैट केम आउट टू बी 113 से लेके 30 से स्टार्ट किया था हमने. 113 तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट किया 40 to 113, 40 minus 130, so somewhere around 70 questions are there in this. उससे काफी कुछ कवर हो जाता है. हाँ क्या पूछ रहे थे आप? तो मैं पूछा था ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज जैसे कुछ होगी क्या? देखो बेटा हमारा आइडिया ये है कि आपको जल्दी से वहां पहुंचाते जहाँ जरूरत है. उसके लिए थोड़ी थ्योरी की भी जरूरत पड़ेगी, टॉपिक टू टॉपिक भी वेरिएशन होगा. ओके, जो जरूरत है वो तो बेसिकली क्रैश कोर्स टाइप है. क्रैश कोर्स फास्ट, ठीक है ना. तो आपको जल्दी जल्दी वो चीज पता पड़ती जा रही है जरूरी, और क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपके लिए उतना क्रैश नहीं है इस कोर्स के लिए. Usually the crash course are designed for you to crash land, and most time it is an accident. That is the reason I do not believe in crash courses. But here the idea is you have already learned the chapter. Basic idea तो है ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, मैक्सिमम लोगों का इशू यही है. ठीक है, तो वो आपको सिखा देंगे उस टॉपिक में कैसे सोचना है. और वही क्या, क्योंकि वही आप भूल गए होंगे, राइट. बाकी सब तो आपके कंपेंडियम में लिखा है, देख लेते हैं, याद आ जाता है. तो कंपेंडियम देख के आओ, टॉपिक एक बार अपने एंड पे रिवाइज करके आओ क्लासेस के अंदर, तो योर लर्निंग प्रोसेस विल बिकम लिटिल बिट फास्टर. क्वेश्चन देंगे और 3 मिनट का टाइम भी देंगे ना, वो भी करने वाले, तो वो भी बताएंगे कि 3 मिनट में कैसे करना है उसको फास्ट. दोस थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर यू, दैट इज राइट. ओके सर. यस. तो ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जैसे सर्कल, कोनिक सेक्शंस जो मैंने बस 11th में किए थे और वो भी एनसीईआरटी लेवल के ही किए थे. तो ये जो क्लासेस होंगी वो काफी होंगी फिर जैसे टॉपिक्स के लिए? देखो कोनिक सेक्शन के केस के अंदर मैं बोलूंगा हाँ, द रीजन इज दैट टेंजेंट के ऊपर का, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के ऊपर का कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा ही नहीं कभी. ठीक है, ठीक है ना. तो अगर आपको सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन पता है, नॉर्मल की इक्वेशन पता है और एओडी पता है, बिकॉज़ देयर इज अ चैप्टर इन एओडी, है ना, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. तो मैंने तो अपने जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन जो टेंजेंट नॉर्मल के पूछे थे वो तो एओडी से ही करे थे. ठीक है, तो कम से कम इतना ही क्लिक कर जाए कि एओडी का कॉन्सेप्ट यूज करके भी कर सकता था, तो मेरा जेईई का क्वेश्चन हो जाएगा. उसके लिए मुझे पूरा कोनिक सेक्शन आना जरूर थोड़ा ना, अगर टेंजेंट भी क्वेश्चन पूछा है. राइट राइट. ठीक है ना. तो ये हैक्स हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए क्या हैक वर्क कर जाएगा, और उसको हमें पेपर के अंदर वहां से क्वेश्चन क्रैक करना. सीधा सीधा रास्ता नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता. गॉट इट.
फाइन, ठीक है। तो कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट करते हैं, आपके टाइम टेबल में चेंजेस 8:39 को रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर नहीं भी होते हैं तो टीचर विल पोस्ट द लिंक्स इन योर ग्रुप एंड वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम देयर, ठीक है ना। योर क्लास फ्रॉम 10 to 11, फर्स्ट क्लास जो है तुम्हारी, वो उसका जो शेड्यूल मैं तुमको बता देता हूँ, इट इज फ्रॉम 10 to 12, इट इज ऑफ फिजिक्स, वी विल स्टार्ट विद फिजिक्स, ओके फाइन। और कुछ चेंज होगा तो टाइम टेबल रिफ्लेक्ट हो जाए, आई विल चेंज द प्लानिंग इटसेल्फ, दिस प्लानिंग शीट, इसी में सब चेंज करेंगे, तो प्लीज स्टोर और बुकमार्क दिस लिंक विद यू। यस सर इवनिंग क्लासेस, सर इवनिंग क्लासेस, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू फरदीन, आई विल अटैच यू टू अनदर बैच दैट आर हैविंग इवनिंग क्लासेस, यू एंड मिशिल, राइट। नहीं सर, अभी हमारा के 5 तक की क्लास चलेंगे 6 घंटे, फिर शाम को भी क्लासेस है ना सर? क्या शाम को कोई क्लास नहीं है, अगर यू आर अटेंडिंग दिस क्लासेस, दिस इज फाइन, डू नॉट अटेंड इवनिंग क्लासेस, यस सर। ठीक है ना। Excuse me, sir. यस Can you also attach me to the evening class? fine, Nachiket, you and Mishita, you are attached to the evening classes, okay fine, chalo, So yes सर आई हैव वन मोर डाउट सर, मैं 5 बजे के बाद आऊँगी और आपने बोला कि आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, तो सर मतलब मैं रिकॉर्डिंग फिर बाद में शाम का क्लासेस वो सब मैनेज कैसे होगा, मेरे को समझ नहीं होगा। आप एक ही चीज कर सकते हैं, आप दोनों कैसे करोगे? इफ यू आर वाचिंग रिकॉर्डिंग्स, डोंट अटेंड इवनिंग क्लासेस, है ना। इफ यू आर नॉट अटेंडिंग इवनिंग क्लासेस, वॉच, है ना। वैसे एक काम करो ना, दोनों कैसे करोगे? सो व्हाट यू सेड, व्हाट शुड आई डू? ठीक है, देखो अभी अगर बहुत क्लासेस भी आप अटेंड करोगे उससे कुछ होगा नहीं। मैंने क्यों सारे बैचेस को मर्ज करके और ये नया प्लान जनरेट किया है, क्योंकि अभी आप कोई बहुत अच्छे से एक टॉपिक पढ़ा भी तो एक ही क्वेश्चन तो सही कर पाओगे, ठीक है। तो कोई टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेने का बहुत इम्पैक्ट नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम। Okay. I would have started the same program after 2 weeks, but we are just losing 14 days in the process and getting nothing out of it. Okay. Okay. And we will keep meeting after 2 days to review. So Mishita and Nachiket, you just drop me messages. I have given you my phone number. Okay, whatever you want, I will do that. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, fine. Yeah. Sir? Yes. Sir, the content taught in the evening classes will be different or same? अरे वो इवनिंग क्लास दूसरे बैच की क्लास है, अभिनव बैच की क्लास है, उसके अंदर हम 11 के टॉपिक 12 के टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। जिसको जाके पढ़ना है वो टॉपिक्स फिर से वहां पे जाके पढ़ ले, वो इन क्लासेस से उन क्लासेस का कोई संबंध नहीं है, ये ना, ये अलग चीज है, एप्पल और ऑरेंजेस, ठीक है ना। व्हाट वी आर डूइंग देयर इज वी आर टीचिंग क्लास 12 तक। इफ यू आपको देखना है उसमें जाके तो इंपॉर्टेंट चीजों को पहले पढ़ा रहे हैं, लेकिन 12th पढ़ाएंगे, ठीक है ना। Here we are specifically focused on maximizing score in JEE exam. That is the whole point. ये एक अलग चल रहा है बेसिकली, जिसका उससे कोई नाता नहीं। Got it? Fine? Done? Sir, are you free right now? Yes, yes. Whoever wants to leave can leave. I have given you the planning. See you at 10 in the morning. And whoever specific questions can stay. Sir, you sent 2 numbers. The bottom one is the correct one. My bottom one is the correct one. Do not call the first one. 934053. Yes, sir. Yes, sir. Yes. बाय सर। Bye-bye. तो लाइक, तो अगर हम इतना कर ले जितना आपने दे रखा है तो कितना परसेंटाइल आ जाएगा ऑलमोस्ट? बहुत आ जाएगा बेटा, पहले भी 7 करा दिए ना, ठीक है ना। Okay. ऑलमोस्ट ऑल कवर कर लिया आपने तो। सर मतलब जो ये क्लासेस है उतना ही हम करें और मतलब अब प्रीवियस मैं ईयर्स बता देता हूँ आपको, उतना ही सबके अंदर होगा, है ना। लाइक दिस इज लाइक 5 to 6 क्वेश्चंस, ठीक है। दिस इज लाइक 4 to 5 क्वेश्चंस, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 10 कवर हो गए, ठीक है ना। दिस इज 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देखो 18 क्वेश्चंस, 15 to 18 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे इजी, जितना यहाँ करते, ठीक है ना। पहले वाले को छोड़ो, जितना इसके अंदर करते, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर इन दोनों में से आ जाएगा। 18-19 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। वैसे फिजिक्स के अंदर हो रहा है ना। अगर यहाँ पे आप देखोगे इन टॉपिक्स को तो उतना यहाँ पर भी कवर होगा। यस सर, जैसे मतलब कुछ दिन प्रैक्टिकल्स होंगे स्कूल में, वो प्रैक्टिस कराएंगे प्रैक्टिकल्स की, तो उस दिन अगर मेरा स्कूल जाना हुआ तो मॉर्निंग क्लासेस हैम्पर हो सकती है। आप मत आना उस दिन, जाके रिकॉर्डिंग देख लेना आपको उसकी। ओके, इफ यू आर फॉलोइंग द होल शेड्यूल, ठीक है, यूजुअली यू आर नॉट गोइंग टू हैव एक आध क्लास मिस हो सकती है, टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिकल्स,
ठीक है ना, try and follow it as much as you can, and that is my idea, because you know this part already you are scoring decently, and I have seen your scores are decent, and up like you are scoring around 200 out of 300, right? Yes, sir. And you are already doing very good in the test. Your idea should be to increase number of topics. Actually this class makes a lot of sense for you as a student. Reason is that कि तुम्हारा कवरेज बढ़ जाएगा, और जो समझना था, जो एप्लीकेशन पावर डेवलप करनी थी, तुम ऑलरेडी कर चुके हो. Only thing that you now require as a student is more content. Okay, and it will be given in a fast manner in these classes. And this pattern, what we are doing, okay, also we have after that 8th Jan to 23rd Jan. If there is something we can do in this duration also. एक test लेके बाकी समय हम 3 hours इसमें use कर सकते हैं. Okay, sir. Okay, so we have more time left also. It is not that this is not the end of the road. And after that there is another attempt also. And also this is not the end of the road. तो वैसा मत सोच के काम करो कि end of the road है, ठीक है ना? But whatever you are doing, do not try to be two different boards. ठीक है ना? कर लो, अगर आपका बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो मत करो, बोर्ड पे फोकस करो. वहां फेल हो जाओगे, नंबर नहीं आएंगे, जबरदस्ती परेशान हो जाओ. नहीं सर, देना तो JEE है, बोर्ड्स तो आ ही जाएगी. तो आपको, हाँ, तो मुझे पता है ना, बिकॉज़ यू आर इन दैट पोजीशन. सब लोग नहीं होंगे, अपने हिसाब से सोचो. This makes a lot of sense for you, है ना? You will be able to gain a lot out of this class. Yes sir. ठीक है, बताइए नेक्स्ट. सर मेरे 2 टाइप के डाउट्स हैं, एक इसी में से है और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से. हाँ बोलो सर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे अब तक ज़्यादा टाइम नहीं मिला था क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का. मुझे कॉन्सेप्ट आता है, बस उसे अप्लाई करना रहता है, और शायद वो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से नहीं हो रहा था. मुझे रिसेंटली टाइम मिलना चालू हुआ है और मैं कर रहा हूँ. तो अगर मैं इसको 100% करूंगा जो आपने अभी दिखाया है, तो और बाकी कुछ बच्चे कुछ टाइम में मैं अगर क्वेश्चंस कर लूँ तो काफी है ना? इसके साथ देखिए, देखो राघव, ये बात समझो कि हर दिन अभी से लेके आप मेंस तक 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा. ठीक है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, ये नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, लेकिन 100 क्वेश्चन रोज करने हैं, ये पर्सनल टारगेट होना. Also, those 100 questions must be in hand with these topics as well. Like, अगर एक whatever you are doing, the idea is that basically your problem is that what happens is basically most of the students do not realize that they think that मेरा ये टॉपिक अच्छा नहीं, वो टॉपिक अच्छा नहीं. लेकिन एक्चुअली चीजों को आपस के अंदर ऐड अप करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर देना है, ठीक है ना? उनका ये अच्छा नहीं है. ठीक है ना? टॉपिक्स का इशू नहीं है उनका, वो चीजों को ऐड अप करके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते. जुगाड़बाजी भी तो करनी आनी चाहिए ना. जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी तो आप क्वेश्चन कर सकते हो. देयर आर 100 ways to do questions. यस सर. तो यू अगर अभी से आप टारगेट बना के चलो कि अभी से लेके इस मेंस में करूंगा, जितना हो जाएगा बेटर, अच्छी तरीके से, और अगले मेंस तक रोज 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. मैं आपको लास्ट ईयर की स्टोरी बताता हूँ, बड़ी खतरनाक स्टोरी है बच्चे की. उस बच्चे की आई 50,000 नहीं, 50,000 से भी ज्यादा, 5 लाख रैंक आई JEE मेंस के अंदर, है ना? और उसने उसके बाद उसकी लास्ट अटेम्प्ट था, चला गया. WBJEE का कोई एग्जाम था वेस्ट बंगाल का, उसने उस एग्जाम से लेके WBJEE के अंदर रोज 150 क्वेश्चन सॉल्व करे. अब इमेजिन करो कि WBJEE में उसकी कितनी रैंक है, गेस करो. उसकी रैंक 33 थी WBJEE में. क्या फर्क हुआ? उसको आता नहीं था क्या? और क्या फर्क पड़ गया? 30 क्या फर्क पड़ गया? 33 और 50 लाख में कितना, तो 5 लाख में कितना फर्क है? 50% आई थी उसकी, क्योंकि भाई वो प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करता. उसे प्रॉब्लम आप करोगे नहीं तो होंगे कैसे आपसे? आप छोटे वाले से शुरू करो ना. आपको क्वांटिटी में क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे ना, तभी तो बिल्ड होगी एबिलिटी. और होगी भी तो डॉर्मेंट होगी, हो सकता है उसके अंदर हो एबिलिटी, लेकिन उसने कभी कराई नहीं तो हुई नहीं. ठीक है, तो ये चीज फंडामेंटल है. बेसिकली आपको प्रॉब्लम तो बहुत सारे सॉल्व करने हैं. मैं आपको बताता हूँ, मैंने JEE मेंस से लेके एडवांस के बीच के अंदर हर दिन 6 घंटे पेपर सॉल्व करें. आप तो क्लास अटेंड करने की बात करें, 6 घंटे पेपर सॉल्व करें. एनालिसिस प्रिपरेशन अलग है उसकी. मेरी JEE मेंस के अंदर रैंक थी 15,000, मेरी JEE एडवांस में रैंक थी 2,000, और थोड़ा मैं दिमाग से काम करता तो शायद मेरी टॉप 500 में जाती. ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस हम कह रहे हैं ना, पेपर लिखने की प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है भाई सक्सेस और फेलियर. आप सोचो ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या नहीं कर रहे होंगे, वो ही नहीं कर रहे जो आप कर रहे हो. क्लासेस तो सब लोग जाते हैं, रिवीजन सेशंस भी अटेंड करेंगे, क्रैश कोर्सेज भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, है ना? कुछ ऑनलाइन करेंगे, कुछ ऑफलाइन करेंगे, कुछ वीडियो देखेंगे, कुछ तो करेंगे ना सब लोग.
फिर क्या नहीं कर रहे हो, इम्पैक्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है? प्रैक्टिस नहीं कर रहे, टेस्ट नहीं लिख रहे, फाइनल इम्पैक्ट वहीं से जनरेट होगा। आप करना शुरू कर दो, अभी से आप 150 क्वेश्चन शुरू करना शुरू कर दो, एडवांस तक जाते जाते पता नहीं आप क्या कर डालोगे। सर मेरा दूसरा इशू था कि क्योंकि प्री बोर्ड चल रहे थे, तो जिन 7 टॉपिक्स की आप बात कर रहे हो, उनमें से कुछ टॉपिक्स का टेस्ट या प्रिपरेशन मैं नहीं कर पाया, तो क्या वो टॉपिक्स मैं इस गैप में कवर कर लूँ तो चलेगा? देखिए, आपके पास टाइम है, ये टॉपिक से शेड्यूल चल रहा है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि इतना ही करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैंने इसमें से अभी शाम को 5 टॉपिक हटाए एक स्टूडेंट से डिस्कशन के बाद। इसमें 5 टॉपिक और थे, मैंने उनको काट दिया, ठीक है ना। आई एम नॉट वेरी श्योर कि सब लोग जब इतना करेंगे तो पूरा कर पाएंगे, तो हो सकता है इसमें से कुछ और टॉपिक काटने पड़े, या ये ओवरफ्लो होके जो हमारा जो मॉक टेस्ट का टाइम है उसमें एक मॉक टेस्ट और साथ में कुछ टॉपिक्स भी पैरेलली चलते रहे, ठीक है। तो ये इसकी बहुत हाई चांसेस है, ये हो सकता है, बेस्ड ऑन योर फीडबैक आई एम गोइंग टू डू, ठीक है ना। तो वो आप मुझे बताओगे, हर 2 दिन बाद मिलेंगे, आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे, सर इतना कर पा रहे, इतना नहीं कर पा रहे, उसके बेसिस पे ट्यून करेंगे उसको। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो इट इज बेटर, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? लेकिन इतना मिनिमम तो करो। इतना मिनिमम भी करोगे तो मैं बोल रहा हूँ वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियोस 15 to 20 क्वेश्चंस तुम्हारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के अंदर इस समय इंडिया के अंदर 40 नंबर भी लेके आए ना पेपर के अंदर, तो इज अ वेरी गुड स्कोर, इट इज 96% आउट ऑफ 100। दैट मीन्स अगर 10 सवाल भी पेपर में सही कर दिए तो बात बन गई। फोड़ना है आपको केमिस्ट्री का पेपर, वहां चाहिए आपको 60 से 70 से 80 नंबर, वो भी टफ है, वो भी आसान नहीं है। 70 to 80 मार्क्स वहां स्कोर करने। फिजिक्स में 50 to 60 भी स्कोर कर लोगे तो सही है, ठीक है ना। उसके हिसाब से मैंने मैथ्स में ज्यादा टॉपिक कवर कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है उतने भी नहीं करने चाहिए, 15 भी करता तो भी चल जाता, 18 तक जाने की जरूरत नहीं थी। तो विल सी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, थोड़ा कम करेंगे थोड़ा ज्यादा करेंगे। ओके, सी मेन पॉइंट इज नॉट दैट मी गिविंग रिविजन, मेन पॉइंट इज दैट यू डूइंग प्रैक्टिस अलोंग विद इट, और उसी से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है ना। यहाँ घोल के पिला देने से कुछ भी नहीं। Sir, yes Najeeb. sir, I have a kind of like a weird thing I want to ask. Yeah. Sir, sir, so sir, in my NCRT के portion, sir. In NCRT portions. Sir. Yes. Go ahead. Sir, I have left like a couple of exercises here and there, sir, for like some of the chapters, and for physics and maths, sir, mostly. I've left like some here and there, and I haven't like 100% finished it, sir. So, like, do you recommend I do like from the module and PYQs, or I finish this and then try to do that? Because I only have 37 days, sir. So, in that, what do you recommend I do? See, my suggestion would be very simple. In chemistry, NCRT is very important. In physics or mathematics, it is not that important. It is just one of the stepping stones. Okay, sir. If you want that stepping stone, keep it. If you can jump, you can avoid it. Okay, sir. As simple as that. So for example, I think that I can do the module directly. Solve it. If you can do the PYQ, solve it. Thank you. So there is no need sir. of stepping stone then. ठीक है ना. See, mathematics के अंदर the logic, ultimate logic will remain still the same. ठीक है ना. Do less amount of syllabus, do it very thoroughly. ठीक है ना. Despite whatever I am trying to cover, है ना, you can skip few classes out of that, consciously telling me. I am trying to focus on this much syllabus, and idea then in that small amount of syllabus is 100% conversion. उसके अंदर भी 60% आ रहे हैं तो फिर ज्यादा ही कर लो, फिर वो बेटर है. Okay. Yes. Sir, sorry, sir. Why I asked was, sir, in spite of doing like the module and like I did all the exercise and examples and all that stuff, sir. But when I went for my school ke exams, I kind of messed it up, sir. So that is why I'm wondering. Your school ke exams will always get messed up if you do not do 2 specific things. If you want to really do well in your school ke exams, do these 2 specific things. You will never face problem. Write papers of your CBSE exam for last 10 years. And when I say papers, write it in a 3R format. And second thing is basically solve your NCRTs. If you know these 2 things, you will never mess up the paper. If you do not do these 2 things, whatever you do, you are going to mess up in certain ways. Okay, sir. Okay, sir. इतना ही करना होता है. देखो, 30 hours if you spend into writing those 10 years paper in mathematics, ठीक है ना, I can guarantee you are getting 85% marks. Okay, sir. And if you do it 2 times, you are getting 90% marks.
90 Okay, to sir. 95%. Because ठीक है ना, your board paper is nothing but a bhelpuri of last 10 years. Yes, sir. ये भेलपुरी बना दो, खा जाओ, काम हो गया, सब कुछ करना नहीं है ज्यादा. Most of the students, Yes, they will do this book, that book, फलाना ठिकाना, वो करते नहीं जो करना है. Last year there was a girl. I told her very categorically, you solve NCERT. है ना, बोलती नहीं सर मैं वेदांतों का कोई मटेरियल कर रही हूँ. मैंने बोला कर बहन, तो कर, कोई कर दो. After that, after the board, सर ये नहीं आया, वो नहीं आया. मैंने बोला तो बोला था तो इससे कर ले, NCERT नहीं करी. ठीक है. Students ask number of questions, then they do whatever they want to do. These there are things that have been well established, and these are patterns. See, in my batches that I have taught, students scored 90-95% in boards without putting much effort. The reason is that they were writing those 30 papers for the last 10 years. They actually sat down. Because your main problem is what you have been doing objective questions you cannot write. That is your fundamental problem. You cannot write a systematic answer in subjective. Despite knowing the answer, you won't be able to express it. तुम बोलोगे सर सही तो है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन you cannot write 5 lines on that explaining it. That is your problem. You will have to do that 3-hour paper, evaluate yourself that this is a 6-mark question, I have written it in 4 lines, how much marks will I give myself? And you will get an answer, I am going to give 2 marks, and that is how much you are going to get. Write the same in 8, 9, 10 lines, your work is done. Start from larger value questions towards lower value questions in while solving the board exams. You will automatically get marks. If you go without doing this practice, whatever you do, you are not going to get marks. Abhi se likh ke le lo. And I am telling this because my CBSE, my board exam pass were 98% physics, chemistry, mathematics. Okay. Yes. Thank you, sir. Thank you. Sir, I also wanted to ask one thing. So, जो हमारी जो test series हुई थी, I got like an average maybe like 160, 170 in those tests. And then जब हम 11th grade revision कर रहे थे, we have revision classes for physics going on. So sir was suggesting कि we start doing JEE PYQs directly if we don't have a lot of time. So after attending classes, I was trying to attempt the PYQs, but I feel like I wasn't very confident in them. And so when I went back and did like the module questions and all of that, and then I went to the PYQs, then I was able to like do them pretty confidently. So would you still suggest that I directly start by JEE PYQs, or should I like... See, your question is like that, should I drink milk or not? If you can digest milk, drink it. If you cannot digest milk, probably you should drink tea then. Okay. Okay, got it. See, everybody will have different kind of digestive system. There are students who have decent level of application ability. Just by attending the lecture, they can go and solve PYQs. There are students who will have to fill that gap in between. This is nothing to do with what you can achieve at the end of the day. But your path will be different from probably Tanush's path or Anna's path. Now that is definitely going to be different. It cannot be same. Because see, I as a student used to do a lot of filling the gaps before actually doing JEE problems. But I knew a student who was just living just aside besides my room. He was very good in solving JEE advanced problem just by attending the lectures. वैसा सुन के आता था, उसको प्रॉब्लम क्या होता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था, क्या कर रहा है ये? Again, he will give you 3-4 methods of solving the question. And the funny part is he didn't make into ITG. Why? Because he was not diligent in doing the syllabus. He lost track after a certain point of time because he was so talented. It was so easy for him. He messed it up. Towards the end, he didn't make it into, he did his engineering from VIT, I guess. Got it. So it is your path. Basically, if you do in a very disciplined manner, discipline is important. And then you figured out a pattern that works for you. Follow that pattern, what works for you. If shortcuts are not working for you, please don't take it. Take the long one, you have enough time also. This is not the final attempt. Definitely give your best. Got it. Anything else? So yes. Sir, I didn't got your number. 9340 593938. Sir, can you repeat, please? I have written in the chat box. Okay. Done? Anything else? Nothing? Sir, have my PNC problems left, sir? 2-3. 2 lectures are left. No, I have questions, sir, like doubts. Sir, could you explain that Badlapur to Mumbai wala train stoppage problem?
अच्छा वो पूछना चाहते हो क्या? अच्छा तो सब्जेक्ट वाला सवाल है वो, तो ठीक है, उसको मैं सबसे आखिर में जवाब दूंगा। किसी और को कुछ पूछना है रिलेटेड प्रिपरेशन? नहीं, ठीक है तो नो, राइट? So everybody else can leave, then Raghav, I will take your PNC problem. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. sir. ठीक है, तो उसमें देखो क्या हो रहा है उस प्रॉब्लम के अंदर। वो प्रॉब्लम ऐसे चल रही है कि उसके अंदर जैसे आपको यहाँ से मुंबई से बदलापुर जाना है, ये सवाल था ना बेसिकली, और उसके अंदर 12 स्टेशन से बीच के अंदर, ठीक है ना, 3 स्टेशन ऐसे चूज करने कॉन्सिक्यूटिव ना। तो दिस इज लाइक अ मॉडिफाइड गैप प्रॉब्लम। हमको क्या करना है, वैसे सोचो कि अगर 9 स्टेशन होते हैं तो उनके अंदर हमको 3 गैप चूज करके उन बचे हुए 3 स्टेशन को फिल कर देना था, ऐसे ही तो करना था। सर उन 9 स्टेशन के बीच मैंने पहले 12 स्टेशन है मेरे पास, उसमें से हाँ। मैंने 3 स्टेशन, ऐसे सोचो कि मेरे पास 3 स्टेशन अलग है और 9 स्टेशन अलग है, यस सर। ठीक है ना। और मुझे 9 स्टेशन के अंदर के जो गैप्स है उनमें 3 स्टेशन को फिल करना है, क्योंकि ये वो स्टेशन है जहां मैं एक्चुअली उतरूंगा ट्रेन से। यस सर, लेकिन वो एक साथ नहीं होनी चाहिए। वो एक साथ में होनी चाहिए, तो मेरे को गैप से फिल करने पड़ेंगे ना 9 स्टेशन के। हम्म, अब 9 स्टेशन के अंदर 10 गैप होंगे, हम्म, 10 में से 3 गैप चूज कर लेता हूँ, 10C3। यस सर। अब प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, ना मैं स्टेशन को अरेंज कर सकता हूँ जो 9 मेरे पास है, ना इन 3 को अरेंज कर सकता हूँ। सर क्यों उनको इस वे में तो अरेंज करना है कि क्योंकि इसलिए नहीं अरेंज कर सकते क्योंकि उनका ऑर्डर तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। अरे हाँ, यस सर। ठीक है, तो मैं इसको 3 फैक्टोरियल नहीं कर सकता, उसको 9 फैक्टोरियल नहीं कर सकता, तो बस मैं गैप चूज कर सकता हूँ, मेरा आंसर हो गया 10C3। समझे? यस सर। सर और मेरे नाम में 2 ए हैं, तो वो रैंक निकालना मुश्किल हो रहा था। मैंने 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, उनको एक पाउच में करके नहीं रख ऐसा नहीं करोगे, बेसिकली ए को फिक्स करो, जैसे क्या? राघव है ना, तो ए को फिक्स करूंगा, हाँ। ठीक है ना। RGHRAGHAGHV इनको अरेंज करूंगा, यस HRB है, AGHVR इसको अरेंज करूंगा, तो 5 फैक्टोरियल हो गया, हाँ करेक्ट। ठीक है ना। अब अगला मैं ले लेता हूँ, क्या लेंगे अगला, जी आएगा, जी ले लिया। यस लेकिन सर। अब की बार जब करूंगा तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 एक जैसे। या हाँ। बस इसको फॉलो कर लो। तो जब ए ले रहे हैं तब 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल नहीं करना? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ए को तो फिक्स कर दिया ना, अरेंज तुम जिन चीजों को कर रहे हो उनमें कहाँ रिपीटेशन है। ओके, तो जो सब्सिक्वेंट लेटर्स होंगे उनके लिए उसको अरेंज कर रहे हो उसके अंदर सेम होना चाहिए, तो आएगा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। उसमें अगर कुछ सेम ही नहीं है जिसको अरेंज कर रहे हो, तो फिक्स कर दिया ना, उसको तो हटा दो, तो कैलकुलेशन के बाद चला गया। तो सर अगर मैं अपने नाम में सेकंड ए पर पहुंच गया, मतलब एच के बाद जो ए है उधर पहुंच गया, तो उस स्टेप पे क्या करेंगे हम? आप अपने नाम की एक ए को देखोगे पहले, उससे क्या हो सकता है, फिर जी पे आओगे, फिर एच पे आओगे, ऐसे ही तो चलोगे ना। हाँ ओके। फिर आर पे यस आओगे, सर। फिर वी पे आओगे, 2 ए पे कैसे पहुंचोगे? यस सर, यस सर। डिक्शनरी के हिसाब से सोचो ना, कॉमन सेंस से। यस सर। ठीक है, ओके Got सर, it? थैंक यू सर, बाय सर। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ निशिता भाई। सर वो एक्चुअली व्हाट आर द कॉन्स अगर मैं जेई ये फर्स्ट अटेम्प्ट ना दूं, क्योंकि मुझे पूरा ऐसे हसल अप होते हुए दिख रहा है, तो सर मेरा दोनों भी फिर अच्छा नहीं जाएगा अगर बोर्ड्स और जेई अगर मैं दोनों दूं। आप बोर्ड पे फोकस करिए। ओके सर। लेकिन आप ये रिवीजन क्लासेस अगर आप कर सकते हैं तो आप अटेंड करते रहिए पैरेलली, लेकिन आप फोकस रखिए बोर्ड में। ओके सर। दोनों को मैं समझता ओके सर, बट व्हाट आर द कॉन्स के अगर मैं जेई मींस का फर्स्ट अटेम्प्ट ना करूं तो? कौन तो ये कि आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। बेसिकली आप देखो, जिसने पूरी प्रोसेस एक बार कर रखी है उसने तो हासिल कर लिया ना, उसने तो 37 डेज के अंदर 37 वीक्स की प्रिपरेशन को स्क्वीज करने की कोशिश कर ली। यस सर। सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हुआ, सक्सेस और फेलियर में तो 10% का ही फर्क होगा ना, लेकिन 50% जर्नी तो उसने भी कर ली ना। सर बट वो उसको इतना 50% जर्नी करनी है आगे, है ना, तो उसको उस बात का एडवांटेज मिल गया इन द प्रोसेस। अगर वो बोर्ड्स के अंदर खराब नंबर आ गए उसके, तो थोड़ा उसको बहुत नुकसान भी, डेट भी लग गया, है ना, बट ओवरऑल पॉजिटिव हो गया उसके लिए, है ना। अब वो उसकी अपनी चॉइस थी, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, बोर्ड थोड़ा ठीक ठाक हो जाए वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको बहुत ज्यादा वैसा नहीं, रिस्क पे नहीं डालना। ओके सर। सर मतलब मेरे को एक चीज़ पूछना था कि जैसे जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपने बोला था कि अगर उसने वो 37 डेज के अंदर सब मतलब कर लिया अच्छे से, सो ही इज़ हाफली प्रिपेयर्ड फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट। बट सर मतलब मेरे हिसाब से तो जैसे एकदम अच्छे प्रॉपरली प्रिपेयर करके अटेम्प्ट हो दिया ना जाए होता ही तो? नहीं निश्चित, प्रॉपरली प्रिपरेशन होती नहीं चाहिए।
ओके सर। वो आप भूल जाओ, वो आज तक जो लोग आप 20 साल में नहीं कर पाए, आप थोड़ा ना कर लोगे। प्रॉपर कुछ होता ही नहीं है, इम्प्रॉपर में ही करना है जो करना है। आप ये सोचो, हसल जो करते करते आप कर रहे हो ना बेटा। लास्ट ईयर की स्टूडेंट था, वो बोल रहा था सर मैं ना कॉमर्स ले लेता हूँ ठीक है ना, मुझसे हो नहीं रहा है। ठीक है, दैट स्टूडेंट एंडेड अप इन डीसी। ठीक है ना, हसल मतलब हो नहीं रहा, कॉमर्स ले लेता हूँ से डीसी, और आखिरी तक भी गया राम आया राम ही था। वो पहुंच गया ना वो डीसी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके डीसी के अंदर। उसको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसे मैथ्स नहीं चाहिए। आप सोचो। तो व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू टेल यू, इम्परफेक्ट स्टोरीज ही हैं सबकी, परफेक्ट स्टोरी नाम की चीज है ही नहीं। तो आप उसमें मत खोजो परफेक्शन। आप सोचो कि मेरे लिए मेरा कंफर्ट जोन और पीस ऑफ माइंड ये रहे कि मैं बोर्ड में अच्छे नंबर भी लेके आऊं, तो फिर आप वो पाथ लो, आप मत परेशान हो। ठीक है ना, जबरदस्ती सब कुछ करने के चक्कर में हम सब कुछ खराब कर लें, उसका भी सेंस नहीं है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं दोनों चीजें हैंडल कर पाऊंगी, इसको भी सफिशिएंटली कर सकती हूँ और इसको भी मैं हैंडल कर लूंगी साथ के अंदर, तो फिर कर लो। आप ऐसा एक मिडिल पाथ भी सोच सकते हो कि मेरी बोर्ड्स फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ठीक है ना, और मेरे पास 20 टॉपिक्स थे, मैं एटलीस्ट 5 कर लेती हूँ 37 डेज के अंदर, वो भी एक ठीक ठाक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट इज अ बैड स्ट्रेटेजी। बैड स्ट्रेटेजी इज, मैं सोचूं बोर्ड के बारे में प्रिपेयर करो, जेई के लिए, जेई के बारे में सोचूं वो प्रिपेयर करो बोर्ड के लिए, दोनों एग्जाम खराब करके। अब देखो क्या हुआ, अब मेरे पास 25 दिन है आगे बोर्ड का एग्जाम लिखने के लिए, मेरी जीरो प्रिपरेशन, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब क्या होगा मेरा? अब मेरा कुछ भी नहीं होगा अब मेरे दोनों एग्जाम बर्बाद हो गए। अब अगर मेरा बोर्ड के एग्जाम खराब चला गया लेटेस्ट से 25 दिन के बाद, 25 दिन के बाद अगर मेरा बोर्ड के एग्जाम खराब चला गया, तो मेरा जो मूड होगा ना वैसा हो जाएगा कि मेरे से अगला अटेम्प्ट भी नहीं लेते। ठीक है ना, वो ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, वो ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। सर मैं इसलिए कह रही थी बोर्ड्स का, क्योंकि एक्चुअली आपने सुना है ना नारायणा के बारे में, तो उसका मुंबई वाला ब्रांच एक्चुअली इतना अच्छा नहीं है। हम लोग को बोर्ड्स के लिए वो लोग ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किया, मतलब इनफैक्ट जेई के लिए भी नहीं किया था, इसलिए मैंने इधर प्रैगबी में ज्वाइन किया। बोर्ड्स के लिए वो लोग ने एकदम अच्छे उन लोग को मतलब सिखाया नहीं है कि किस तरीके से आंसर्स लिखना है। हम लोग को 10th में बताया था कि पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, पैराग्राफ में बोर्ड ने मतलब मना कर दिया अभी, तो ये सब के बारे में अभी हम लोग को बताया नहीं है, तो ये सब भी लैग बिहाइंड करता है। तो इसलिए फिर मुझे लगा मैं बोल रहा हूँ निशिता, एक लाइन में बता देता हूँ कैसे आंसर लिखना है। इस एक लाइन को सुन लो और इम्प्लीमेंट कर देना, आपको ये नंबर आएंगे। 10 साल से आ रहे बच्चों के। आप करना, एक लाइन को 3 लाइन में एक्सप्लेन करके लिखना। ठीक है, तो आप अगर जेई के अंदर लिखोगे तो आप बोलोगे माय नेम इज निशिता, बात खत्म हो गई। इनफैक्ट निशिता बोल दोगे तो भी समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। अब आप बोर्ड का आंसर लिखने जा रहे हो ना, तो उसको जबरदस्ती 3 लाइन में, माय नेम इज निशिता वर्मा, ठीक है, माय फादर्स नेम इज XYZ वर्मा, माय मदर्स। अब जी क्यों लिख रहे हैं हमें? तो जैसे आप क्या लिख रहे हो, एक आंसर लिख रहे हो। अब मैथमेटिक्स का शुरू करो 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन से पेपर के अंदर, ठीक है ना, कम नंबर के क्वेश्चन तक लेके आओ। रीजन क्या है कि जब मैं बड़ा क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं, मुझे क्या पता है, जो फॉर्मूला पता है ना, वो भी नीचे में ब्रैकेट में डाल के लिखता हूँ। आप सोचो कि लंबा करना है उसको साइज के अंदर, हर स्टेप को आप एक्सप्लेन करके लिखिए लॉजिकली। आप करके लिखेंगे, आपको बोर्ड का आंसर बन गया है ना। उसी को आप शॉर्टकट कर देंगे, एक स्टेप 4 स्टेप की जगह एक स्टेप लिखेंगे, जेई का सॉल्यूशन बन गया। थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा ना डिफरेंट है, लिखोगे थोड़ा ना कुछ अलग। और जो आपको मैथमेटिक्स में लिखते हो बन रहा, उसको सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करके लिखो, वहां से भी नंबर मिल जाएंगे। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मुझको एग्जैक्टली नहीं पता इसका आंसर कैसे लिखते हैं, जैसे रिलेशंस के अंदर हमें कई बार लिखना पड़ता है। अब वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करके लिखो पैराग्राफ में, वहां से भी नंबर आ जाएंगे। अब बस ये सोचना है कि 6 नंबर का सवाल है, इतना नहीं लिखूंगा तो कौन नंबर देगा। उसमें 4 लाइन या 2 लाइन का आंसर मत लिख के आना। एक मेरे पास स्टूडेंट था, उसकी स्टोरी भी है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि वो स्टूडेंट क्या था, साइबर ओलंपियाड का इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट था। तो वो अपने आप को समझता था जीनियस। मैं उसको बोलता था ये ना तू बहुत जीनियस है बेटा, लेकिन पेपर में मत यूज करियो। ठीक है, तो पेपर में क्या करके आता था, बेसिकली व्हाट ही यूज्ड टू डू इन द पेपर, तो 2-2 लाइन के आंसर लिख के आता था 6-6 नंबर क्वेश्चन के, और इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस। और मैं उसको बोलता था बेटा मैं चेक कर रहा हूँ ना, मैं भी तो आईआईटी से आया हूँ, तुम्हारा जो पेपर चेक कर रहा होगा वो थोड़ा ना आईआईटी से है। 70% नंबर आया उसके बोर्ड के अंदर मैथमेटिक्स के। इंटरनेशनल साइबर ओलंपियाड टॉपर, ब्रिलियंट माइंड, वेंट इनटू फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में रहा भी नहीं आगे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली कि ये
करते हैं स्टूडेंट्स, है ना. डोंट डू दिस, वेरी सिंपल. राइट 10 पेपर्स, एनालाइज योर पेपर, यू विल नो व्हाट टू डू. गो थ्रू एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर कैसे लिखो, बस रॉकेट साइंस नहीं है. 10 पेपर लिख लोगे तुमको समझ में आ जाएगा. सर मुझे और एक चीज़ के बारे में पूछना था. सर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो जब आध्या बैच में मैं आई थी तो मैं लास्ट आई थी आध्या बैच में, तो तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर थोड़ा खत्म हो चुका था, तो मुझे ये पढ़ा रहे हैं 3 दिन के अंदर गौरव सर पढ़ाएंगे, बढ़िया एक समराइज कर देंगे. जी सर. तो सर वो खत्म हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया था, तो फिर मेरे को बोला गया था कि मतलब ऐसे बैकलॉग क्लासेस आप ही अभी अरेंज भी लगवा सकता कीजिए. हूँ मैं. एक रत्ना सर है, उनके साथ में तुम्हारी क्लासेस लगवा देता हूँ. इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा देंगे अगर पढ़ना है तो. नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि मेरे बैकलॉग क्लासेस लग गए थे, बट मतलब तब एक्चुअली जो प्राग्वी का जो मेरा आध्या वाला बैच था, तो उधर कोई और टॉपिक चल रहा था, तो मेरे को आपने बोला था, तब आप मेंटरशिप ले रहे थे, तो आपने बोला था कि जो करंट अभी बैच में चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करो. तो अभी उस पर फोकस किया, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाई, और मैंने बस एक बार लेक्चर देखा है, तो ये इनफ होगा गौरव सर का लेक्चर? मैं वो पूछ रही थी. गौरव सर बहुत इजी पढ़ाते हैं. ओके सर. सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ा देंगे वो तुमको. स्टार्टिंग में पूरन सर पढ़ा रहे हैं, वो भी सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर पढ़ा देंगे. स्टार्टिंग में तुम्हारा पूरा समराइज हो जाएगा तो तुमने पढ़ा, वो कनेक्ट हो जाएगा सारा, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना उसके बाद. ओके सर. ठीक है. ओके. ओके, बस आप मुझे बता देना कि वो इवनिंग के अंदर जो अभिनव बैच चल रहा है ना, उसमें भी शायद ये 12th के टॉपिक से स्टार्ट होने वाले हैं. ओके. नहीं सर, मैं बता दूं अभी आपको कौन कौन से टॉपिक्स बच रहे हैं? हाँ बता दो. सर जैसे केमिस्ट्री में अभी कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, आज बायोमोलिक्यूल्स खत्म हुआ है, तो कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स बचा है. बहुत डिटेल के अंदर हिमांशु सर पढ़ा रहे हैं, 3 क्लास लेके 6 घंटे के अच्छा. अंदर, तो उसमें बहुत अच्छे से कवर कर देंगे. और पॉलीमर स्टार्ट हुआ है, तो वो तो मतलब अभी कल पॉलीमर्स से. वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं वो हिमांशु सर. ठीक ओके है, तो सर. उसकी प्लानिंग ऐसे करिए कि जो तुम्हारा वहां खत्म हुआ है ना, उससे तुम्हें कंटिन्यूशन यहाँ पे. ओके. और सर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो चालू ही नहीं हुए, इनऑर्गेनिक में आते हैं वो, तो पढ़ा मतलब रहे हैं हिमांशु एनसीईआरटी. सर, वही पढ़ा रहे हैं, डी और एफ पढ़ा रहे हैं इसके बाद. ओके सर. ठीक है ना. और और उसके सर बाद जो तुम्हारा रह जाता है वो बता देना. वो 20 जैसे वो सिलेबस खत्म होगा उसके बाद हम उन टॉपिक्स को ले लेंगे. जहाँ जहाँ सबको इंडिविजुअल इश्यूज होंगे ना, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, वो होगा, वो हम आखिरी के अंदर तुम बता देना, वो ले लेंगे अलग से. ओके. और सर फिर बाद में मैथ्स का जो बच रहा है हमारे बैच में, वो डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस मतलब सर. नहीं, स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो अभी सर ये वेक्टर जो 3. डिवीजन स्टार्ट करें वहीं से स्टार्ट करें. ओके, ठीक है. ठीक है ना. कि उसका पर्पस यही था कि जो आपका वहां पे रह गया 12th वाला, पहले हम यहाँ सिस्टमेटिकली खत्म करा दें, है ना, फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. जो काम की चीजें वो बता देते हैं, सब कुछ बताने की तो जरूरत भी नहीं, और बोर्ड में तो वैसे ही वो ज्यादा नहीं पूछ रहे. ओके सर. और सर जो ये क्लासेस होंगे 6-6 घंटे के, उसके नोट्स वोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स 6 तो बजे के पहले बाद से वाले रखते दूसरे बैच में हम आपको अटैच कर रहे हैं. बेसिकली उसके अंदर ये है, हैं. ये आपका जो दूसरा ड्रॉपर्स बैच रन हो रहा है उसके अंदर हम आपको अटैच कर देंगे. तो उसमें 12th के टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं. तो अगर आप एग्जैक्टली चाहते हो तो मैं बोल दूंगा, मैं कल मालूम करके आपको बता दूंगा, मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, है ना, कि वहां पर क्या एग्जैक्टली चल रहा है. तो आप डिसाइड कर लेना कि उसमें इवनिंग के अंदर क्लास कहाँ अटेंड करने जाना. ओके सर. कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कंटिन्यूटी बनी रहती है ना. अटेंड करते रहते हो तो आप लूप में रहते हो, फिर आप नहीं करोगे कोई अटेंड क्लास तो फिर आपका ब्रेक भी आ जाएगा. ओके सर. ठीक है ना. वो चीजें बेसिकली हम बने हुए हैं, कंटिन्यूटी में क्लास जा रहे हैं तो सही रहता है. तो आई विल रिकमेंड कि अगर, हाँ मतलब अगर तुम सोचते हो कि इस अटेम्प्ट को उतना सीरियसली लेना, मैं बोर्ड्स पे फोकस करूंगी, दैट इज फाइन, बट कीप अटेंडिंग सम क्लासेस सो दैट देयर इज सम सेंस ऑफ कंटिन्यूटी. भले ही तुम ऐसा सोचो कि ये मैंने पढ़ा हुआ है ना, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री कर लेती हूँ, मैथ कर लेती हूँ, वॉट एवर यू फिगर आउट. ठीक है ना. बट एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी बना रहेगा ना, तो आप साइकिल से बाहर नहीं जाओगे. नहीं तो आप साइकिल से ही बाहर चले जाओगे, पूरा बोर्ड हो जाएगा 1-2 महीने. ओके सर. वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. ठीक है. थैंक यू सर.